कोई पीछे से पंखे वंखे की आवाज तो नहीं आ रही कोई? नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है। समुद्र की आ रही सर। हाँ वो कोई बात नहीं। चलिए जब आपके मेंबर हो जाएंगे बता दीजिएगा। जी जी, अभी ऐड हो रहे हैं सर अटेंडेंस। कोई बात। अभी तो सिर्फ 4 बजे ही है। जी बस स्टार्ट कर लेते हैं मोस्टली हम लोग ना, 2-4 मिनट देख लेते हैं। कोई बात नहीं मैडम, अभी नंबर ऑफ अटेंडेंस बढ़ रहे हैं वो। हाँ बढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, वो सब लोग आ रहे होंगे ना धीरे धीरे। हाँ जी बिल्कुल। तो 2 मिनट देख लेते हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल, 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं हम लोग। 5 मिनट्स की बात कर लेंगे, 5-10। करें पवन जी, 43 तो हो गए कि है ना? हाँ, आई थिंक करना चाहिए मैडम। हाँ 43 कर लेते हैं स्टार्ट ना। कर लेते हैं मैडम स्टार्ट, ठीक है मैडम। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, I CA Pavan Mittal Secretary welcome you all on behalf of Hisar branch of NIRC of ICI, respected senior member of the branch and young professional colleagues. Today we have with us CA Sanjay Agarwal ji as guest speaker, founder member of Voice of CA platform and past Central Council member of the ICI. I welcome you sir on behalf of Hisar branch of NIRC of ICI. Topic of today's webinar is ESET assessment and the law of evidence to the extent applicable under the Income Tax Act. Now, before inviting to Sanjay sir, I would like to invite CA Asha Jain ji, Chairperson Hisar branch, for her welcome address. Over to Madam. Thank you Pavan ji. Good evening CA Sanjay Agarwal ji and all the respected senior members and the members who have joined us for today's webinar. I CA Asha Jain, Chairperson Hisar branch, extend a warm welcome to CA Sanjay Agarwal ji, past Central Council member and also the upcoming CC member. CA Sanjay Agarwal ji has been a Central Council member for a continuous period of 3 years, 3 terms, from 2010 to 2019. During his tenure, he has served almost all the standing, non-standing and other committees as chairman or vice chairman, and in few other cases as a member. He has been the chairman of Research Committee and Taxation Audits Quality Review Board, Corporate Law, Corporate Governance Committee, Direct Tax Committee, Legal Coordination Committee, Digital Transformation and Process Reengineering Committee, Indirect Tax Committee, Public Relations Committee, and various other committees, so on and on. He is also the founder of Voice of CA and one of the very eminent speakers in direct taxes today. Today, Sanjay ji will enlighten us and make us understand the complexities of e-assessments, which is of great concern to all of us. And he will also brief us on the law of evidence to the extent applicable under the Income Tax Act. We welcome you, Sanjay ji. And now, without taking time, I would request Sanjay ji to take over the session. Thank you.
चेयरपर्सन जी, सबको पहले नमस्कार और आई एम थैंकफुल टू हिसार ब्रांच ऑफ ICAI for giving me this opportunity to interact with you. So, Honorable Chairperson CA Asha Jain ji, Vice Chairman Mr. Bharat Jain ji, Mr. Pawan, the Secretary and the backbone of the Hisar branch, and Adish ji, Executive Member, is presently visible on the screen. विशेष जी एंड ट्रेजरर साहब भी नजर आ गए. तो सर आपके पास ही है सब कुछ कुंजी, तो विदाउट मनी नथिंग इज पॉसिबल. And thank you, sir. Thank you. And all seniors, those who are not visible right now. So thanks a lot. Let me tell you, friends, this scheme of faceless assessment is not new, but there are things which have been, you can say, have done in this scheme. And as on today, it has taken a new dimension. And the present status on this is this, that after 12th of August midnight, any assessment which is being passed other than central range or international tax will be a null and void, other than the electronic assessment which is being finalized. So this is very important. It covers all type of the assessments. And the little bit background which I would like to take for the, आप कहीं भी मुझे हाथ रेस कर सकते हैं. चैट बॉक्स को मैंने छोटा कर दिया है क्योंकि presentation is on the whole screen. Let me tell you, friends, it is a dream of Honorable Prime Minister for using the IT technology and the digital technology, and as such, he desired in the national conclave that a faceless assessment scheme should be introduced with a view to honor the taxpayer and impart greater efficiency, transparency, and accountability. To this, the original scheme, which was announced, was modified, and it is being said that honoring the honest. And faceless assessment is effective, as I said earlier, from 13th August 2020. Similarly, faceless appeal will come into effect from 25th September 2020. Taxpayer charter has also been introduced. Some of the reportable transaction in SFC will come, and for which inside some information is being given, so that I will share with you, but it is not yet being notified. Then there are some changes in the power of survey. So these 5 major changes have been brought in this particular, you can say, continuation of the e-assessment on 13th August by Honorable Prime Minister. Now the scheme which is there is known as e-assessment scheme 2019, and it was announced on 5 July 2019. मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग में से कुछ अनम्यूटेड है, अगर म्यूटेड हो जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा. Organizer, please mute on entry so that anyone new admitted will also be muted. Unless until you have a question, please mute yourself, because I am not seeing the screen at all. I am seeing my PPT. Now, this scheme was when introduced for 17-18, and it has been said that there will be no human interference.
but the flaw, or what you say, that we were knowing that who was the assessing officer. Now we will not know who is the assessing officer. All notices will be issued electronically only, and the assessment will be allocated by a automated system in the computer, and the person allocating will also not know that who is the person behind the wall. So this scheme of 2019-20 financial year, which was there, it was only to cover the assessments which were there in 143.3. All assessments which were beyond 143.3, for example 147, 148, for example 144, they were not covered in the earlier scheme. Now this scheme is being designated, instead of e-assessment, now as faceless assessment. Earlier this scheme was for 5 or 6 regions only, big cities, but now it is applicable all across the India, except for 2 charges, that is the central charge, where normally such cases are taken, and international taxation charges. This faceless scheme is presently, which is applicable from 13th of August, is not applicable, and it is being said any order, if it is passed after 12th of August by any other mean, will be treated as void ab initio. अब सर हम चलते हैं कि इस स्कीम में और क्या किया. नोटिस भी फेसलेस में 143(2) का अब NEAC, नेशनल ई असेसमेंट अथॉरिटी, ही आपको सर्विस करेगी. एक ही फेस होगा, आपको हमको नहीं मालूम होगा मेरा असेसिंग ऑफिसर इसके पीछे कौन है. और 142(1) में अगर आपको रिटर्न का नोटिस आएगा कि आपको रिटर्न फर्निश करनी है, आपने 139(1) के टाइम में नहीं करी या एक्सटेंडेड टाइम में नहीं करी, तो आपको नोटिस आएगा. इसके अलावा अगर 148 का कोई नोटिस और 142(1) उसमें आपको इश्यू हो चुका है, तो वो भी इसमें कवर है. इसके अंदर 144, 142(2) स्पेशल ऑडिट और 142(1) रेगुलर, जो कि फेलियर ऑफ रिटर्न्स या एक्सटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं, उनको यहां कवर कर दिया गया. ये एक छोटा सा मैंने कंपैरिजन बनाया है, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में क्या डिफरेंस है. पुरानी स्कीम 143(3) पे थी, नई स्कीम में सारे असेसमेंट इंक्लूडेड हैं अदर देन सेंट्रल एंड इंटरनेशनल टैक्स. दिस वाज नॉट एप्लीकेबल टू 147, 153A, जबकि पिछले साल मैंने सर्च असेसमेंट भी ई असेसमेंट कराए हैं. कई ऑफिसर ने कहा आप सब कुछ मेरे को ई असेसमेंट में दो, और जब जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा. और 144 भी नहीं कवर थे. अब ये सारे अदर देन सेंट्रल एंड इंटरनेशनल टैक्स, एज आई सेड अर्लियर, एवरीथिंग इज कवर्ड. कंपल्शन मैंने बता दी, नॉन एस्ट होंगे. अब ये कोई भी असेसमेंट नहीं कर पाएंगे अदर देन. अब सर ये इंटरफेस है, मेरा इंटरफेस टैक्स पेयर के साथ सिर्फ और सिर्फ इनिशियली एंड अदरवाइज नेशनल ई असेसमेंट सेंटर NEAC के साथ होगा. और NEAC बिहाइंड द वॉल इन 4 यूनिट्स के साथ इंटरफेस रखेगा. ये आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकेंगे, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही. एक असेसमेंट यूनिट होगी,
एक वेरिफिकेशन यूनिट होगी, एक टेक्निकल यूनिट होगी, एक रिव्यू यूनिट होगी। और थीम ये है कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो, इंटरफेस नहीं अवेलेबल हो, डायनेमिक जुडिक्शन हो, दिल्ली वाला हिसार में, हिसार वाला कलकत्ता में, कहीं से भी कोई भी आपका यूनिट हो सकती है, चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे वेरिफिकेशन हो, और चाहे टेक्निकल हो, चाहे रिव्यू हो। ये सभी लोगों का अलग अलग रोल होगा। टीम बेस्ड असेसमेंट वर्किंग होगी, और जो हमारी टेक्निकल यूनिट है ये आपके स्पेशलाइज्ड जो है वो काम करेगी। अब सर ये जो है एक चार्ट मैंने बनाया कि रोल क्या होगा। NEAC, NEAC means I have already said that National E-Assessment Charge. Then Regional E-Assessment Charge. Regional E-Assessment says that जो मेरा बाकी का काम करेगा other than interacting with the assessee or anyone else. इसमें रीजनल के साथ 4 यूनिट और होंगी जो कि ये लोग हैंडल करेंगे, जिसमें एक होगी असेसमेंट यूनिट जिसका काम करना सिर्फ और फाउंडेशन है, मेकिंग असेसमेंट के लिए, क्वेश्चनर इशू करने के लिए, क्लैरिफिकेशन लेने के लिए, एनालिसिस करने के लिए जो मटेरियल आया, जो एसएससी ने उनको दिया है। और वेरिफिकेशन यूनिट का काम जो है वो इंक्लूडिंग इंक्वायरी, क्रॉस वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, विटनेस वगैरह, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट वगैरह का होगा। टेक्निकल यूनिट पहले जो फंक्शन करती थी वो सारे फंक्शन वो अपने आज भी करेंगी। एक फंक्शन उसमें और ऐड कर दिया है, वो है ऑडिट। अब ये ऑडिट भी कर सकती है और स्पेशल ऑडिट को भी ये रेफर कर सकती है। टेक्निकल यूनिट विल गिव एडवाइजेस और असिस्टेंस ऑन लीगल, अकाउंटिंग, फोरेंसिक, IT, valuation, audit, as I said, TP, data analysis or any other technical matter. Review unit ये कब आएगी, कब एंटर होगी, टेक्निकल यूनिट कब इन्वोक होगा, ये सब जो है आपको मैं आगे बताऊंगा। ये जो है वेरिफिकेशन यूनिट रेलेवेंट मटेरियल को एग्जामिन करेगी और ये देखेगी जो कि असेसमेंट यूनिट ने एक ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा है उसमें सब चीजें इनकॉर्पोरेटेड हैं या नहीं है, डिसअलाउंसेस, एडिशंस प्रॉपर डिस्कस किए हैं या नहीं किए हैं, केस लॉस को उन्होंने प्रॉपर रखा है नहीं रखा है, और किसी तरीके की कोई अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी तो नहीं है। ये जो है रिव्यू यूनिट का काम होगा। साहब जो परफॉर्म करेंगे अभी उसमें से कुछ एक फंक्शंस अभी नहीं है। जो मेरा असेसिंग ऑफिसर होगा वो मात्र रिकवरी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रह जाएगा। बाकी सभी फंक्शन अनलेस अनटिल स्पेसिफिकली वो असाइन किए जाएंगे तो जाएंगे, वरना ईओ पे नहीं जाएगा कुछ भी। जुडिक्शनल वही रहेंगे, ऑर्डर पास करने के बाद रिकवरी रिलेटेड उसको सारा रिकॉर्ड दे दिया जाएगा। और 263 वगैरह अगर करना है तो वो जो है कमिश्नर उस रिकॉर्ड को तब एक्सेस कर पाएगा। टैक्स पेयर की एजुकेशन, फैसिलिटी, रेक्टिफिकेशन, ग्रीवेंस हैंडलिंग, डिमांड मैनेजमेंट, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस बाद में आएगा। ऑडिट फंक्शन, ये सारे फंक्शन जो मैंने दिए हैं ये सब जो है फेसलेस को कवर करने। चलिए सर, शुरुआत कहां से होगी? नोटिफिकेशन नंबर 60 बताता है एनी एसी shall service a notice on the assessee under section 143(2) or they have to specify why the case was selected for scrutiny.
अभी ये एक सिंपल नोटिस नहीं दिया जा सकता कि आपका केस स्क्रूटनी में ले लिया है, देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड। इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक केस का क्वेश्चनर आएगा आपको इनिशियल। इस नोटिस से पहले एक और नोटिस का इन्होंने जन्म दिया है, जिसको इन्होंने कहा है वेरिफिकेशन। आपकी कुछ चीजें जो कि आपके 26 AS में या अदरवाइज होंगी, वो आपसे ये कहेंगे इनको वेरीफाई करें, बताएं यू एग्री और डिसएग्री। जैसे मेरे पास एक ब्रोकर है, मेरा क्लाइंट, मैं उसका टैक्सेस का काम करता हूं, उसके पास उसने 16 लाख ट्रांजैक्शन करी है। 16 लाख ट्रांजैक्शन को इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए उसके अकाउंट में डाल दिया। साहब अब वो कैसे करेगा? सारों को हाँ कर दिया और बाद में कुछ ना निकल आई तो मुश्किल, और एक एक को चेक करेगा तो उसका टाइम जो दिया है वो 5-7 दिन का दिया है, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ एक डिफिकल्टीज आएंगी जो कि आपको 143(2) की तरफ ले जाएगी। अगर आपको 143 नोटिस 2 का आया तो यू विल गेट 15 days to reply. Up to 15 days, you can send your reply on the specific points to NEAC. NEAC उसको जो है कंप्यूटर बेस्ड जो एलोकेट होगी रीजनल असेसमेंट यूनिट उसको भेज देगी और आपका असेसमेंट चालू हो जाएगा। आप अगर 15 दिन में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। एक्सटेंशन नॉर्मली 15 दिन से ज्यादा आज की डेट में नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको ये भी देखना है कि ये एक्सटेंशन बार बार ना अप्लाई करें। अब सर जो असेसमेंट यूनिट है वो आपको क्वेश्चनर, जब आप पहला सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे वो आपको फर्दर क्वेश्चनर इशू करेगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है कि असेसमेंट यूनिट आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं करेगी, कोई मेल बाईजी, किसी तरीके का फोन नहीं परमिटेड है। ये जो है नेशनल EAC आपको इसके बारे में करेगा। यहां भी आपको बता देता हूं, हर केस को डेजिग्नेटेड आदमी नहीं होगा, और जब नोटिस इशू होगा तो किसी, ये 25-30 लोग होंगे, उनमें से किसी एक के विंडो में चला जाएगा, और जब वो असेसमेंट यूनिट आपको रिक्वायरमेंट देगी तो जरूरी नहीं है कि वो सेम पे जाए, किसी और पे भी जा सकता है। इसके बाद अगर NEAC ये समझती है कि हमको, या असेसमेंट यूनिट ये समझती है कि ये मैटर टेक्निकल है और मुझे इसमें टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए फॉर मेकिंग सर्टेन थिंग्स विच आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस टाइम, दैट टेक्निकल जो है यूनिट की, इसमें ये मुझे कोई लीगल अकाउंटिंग चीज समझ नहीं आ रही, फॉरेंसिक कोई इंफॉर्मेशन करनी है, बैलेंस शीट में कोई फिगर आ रही है, असेसी ने कोई चीज फिगर दी है, कोई किसी तरीके का हमें बुक्स एग्जामिन करनी है या कुछ करना है, तो ये अपना जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगी NEAC को कि मुझे टेक्निकल यूनिट की मदद चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द असेसमेंट यूनिट कैन नॉट कॉन्टेक्ट एनी टेक्निकल यूनिट ऑफ इट्स ओन। सेंटर अथॉरिटी इज NEAC. NEAC will allot once again through an automated system to technical unit to provide their guidance as required by the assessment unit, and the report will also be submitted to NEAC by technical unit, which may not be shared with the assessment unit. And if suppose still AO says I wanted to verify certain statements etc., or I wanted to examine some of the people, then it will send it to
वेरिफिकेशन यूनिट। और जैसा कि मैंने बताया था कि वेरिफिकेशन यूनिट का क्या काम होगा, वो इंक्वायरी करेगी, क्रॉस वेरिफिकेशन करेगी, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कर सकती है और विटनेसेस को कर सकती है और आपकी रिकॉर्ड स्टेटमेंट कर सकती है। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट वगैरह के लिए एसओपी आएंगे। आज की डेट में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही परमिटेड है, तो मतलब डिपार्टमेंट के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस चार्ट में आपको राइट हैंड साइड पे दिखाया है कि ये आपस में किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। मुझे ऐसा बताया गया है कि अगर कोई ऑटोमेटिव सिस्टम से एनईएसी ने एक्स ऑफिसर को फाइल भेजी कि आप जो है इसके ऊपर अपनी इंक्वायरी जो करनी है या आपको जो डिटेल्स मांगनी है वो आप बताएं, और अगर असेसमेंट यूनिट ने उस चीज को शाम तक नहीं किया तो शाम को वो विंडो क्लोज होके दूसरे आदमी पे चली जाएगी और वो आदमी पे ये ट्रेस नहीं रहेगा कि वो ए यूनिट के किस आदमी के पास गई। साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी पहले कि लोकेशन वाइज ट्रांसफर होती, शायद अब टेक्नोलॉजी की वजह से ये लोकेशन वाइज जो ट्रांसफर है उसका जो है वो औचित्य कम हो जाएगा और ये जो है चीजें जो हैं अब काफी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। तो अपने को ये देखना है कि ये जो सरकार ने एक मुहिम चलाया है कि जो है ऑनेस्ट दी अवार्ड टू ऑनेस्ट, तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पिछली बार जब मैं बजट के सेमिनारों में बोलने गया तो मैंने सबको बताया था टाइम हैज कम व्हेन जीरो टॉलरेंस विल बी देयर। अब ये सर ये प्रोसेस और सारा मैंने डिटेल में समझाया है। अगर आपके यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं कंट्रोल रूम को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछना चाहता है तो मुझे पूछ ले, वरना जो है मैं इसको आगे जो है चलाऊं। एनी क्वेश्चन एज ऑन प्रेजेंट एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट, कैन समबडी सेज? यस संजय जी, बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई किसी की अभी क्वेरी तो नहीं है? अभी तो नहीं है, चैट बॉक्स में नहीं है सर। ओके, क्योंकि मैं बिल्कुल मिनिमाइज कर लेता हूं, मुझे कोई भी नजर नहीं आता है। हाँ, नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू। ये 15-16 पॉइंट उन्होंने बताए, 6 मैंने आपको बता दिए। 7वां पॉइंट ये है कि जो एसएससी और एनी अदर पर्सन जो भी आपके लिए अवेलेबल होगा वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर रिप्लाई फाइल करेगा और जो है वो इंक्वायरी या वेरिफिकेशन ए यूनिट जो कहेगी उसको करके एनईएसी फॉरवर्ड करेगी एयू को, और एयू जो है उसके बाद उस पे या तो आगे कोई कार्रवाई करेगा या जो है वो एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बताएगा या फर्दर इंफॉर्मेशन मांगेगा। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं मांग पाएगा जो कि उसको लगता है कि पहले नहीं पूछी। अगर उसको पूछनी है तो ये उसको स्पेसिफिकली एनईएसी को दोबारा बोलना पड़ेगा। और अगर आपने कंप्लाई नहीं किया और नोटिस पे नोटिस आते रहे और आपने उनका जवाब नहीं दिया तो 144 का एक नोटिस आपको इशू कर सकता है, शो कॉज कि आपका असेसमेंट क्यों ना कंप्लीट कर दिया जाए 144 में। और ये पावर इस बार 13 अगस्त से दे दी गई। 11वां नंबर पॉइंट ये बताता है कि अगर आपने किसी 142(1) या 142(a) में ऑडिट आपको करने के लिए कहा और आपने वहां भी कोई कोऑपरेट नहीं किया तो स्पेसिफाइड टाइम या एक्सटेंडेड टाइम में
वो आपके फेलियर को इंटीमेट करेगा असेसमेंट यूनिट को, और असेसमेंट यूनिट मटेरियल जो भी उसके पास अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा और वो NEAC को दे देगा। इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में, जो कि पहले 144 हुआ करता था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, उसकी तरह जो भी चीज रिकॉर्ड पे अवेलेबल होगी दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट, एंड a sum payable और sum refundable will be there, and modify return जो भी होगी वो NEAC को भेज देगा। NEAC आपको उसके ऑर्डर को एग्जामिन करेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी उसके पास 3 ऑप्शंस होंगे। पहला, वो फाइनलाइज कर दे और एक कॉपी आपको सर्व कर दे अलोंग विद ए पेनल्टी नोटिस और डिमांड नोटिस। दूसरा, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे, या वो अगर चाहे तो उसको आपकी जो ड्राफ्ट असेसमेंट है उसको RU को दे दे, रिव्यू यूनिट को, कि उसके हिसाब से वो असेसमेंट ऑर्डर उसको ठीक नहीं लग रहा है और ही वांटेड टू सीक द रिव्यू यूनिट टू रिव्यू द ऑर्डर, और वो ड्राफ्ट ऑर्डर रिव्यू यूनिट पे भी ऑटोमेटिक सिस्टम के हिसाब से जाएगा। तो ये रिव्यू यूनिट पे भेज सकता है, और नहीं तो सीधा शो कॉज नोटिस आपको जाएगा और आपको जवाब देना है, और जवाब जो है उसके बाद ये आपको ऑर्डर इशू कर देंगे। लेकिन आपने कोई चीज जवाब दी, 4 पॉइंट आपसे पूछे, उसमें से 2 पॉइंट उनकी समझ में आ गए और 4 शो कॉज नोटिस में से 2 पॉइंट ऐसे थे जिसपे AU कहता है कि मैं एडिशन करूंगा, तो आपको फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, अब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन 4 पॉइंट आपको इशू करे, 4 में से 2 मान लिए, लेकिन उनको 1 पॉइंट वो जो आपने 4 के जवाब दिए उसमें से कुछ और मिल गया, और वो आपको उसका फर्दर नोटिस इशू करना चाहेंगे, तो रेवेन्यू ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फैसिलिटी दी है, ये असेसमेंट यूनिट पे काटा लग जाएगा और उसके बाद ये जो है असेसमेंट जो है दूसरी असेसमेंट यूनिट पे चली जाएगी, उस यूनिट पे नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पे भी इन्होंने किसी तरीके की मैनिपुलेशन का स्कोप बंद कर दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 13 पॉइंट के बाद आपको आ जाए। अब ये जो है न्यू असेसमेंट यूनिट इंटरेक्शन वो करेगी, सर्व करेगी कॉपी आपको, शो कॉज नोटिस होगा, फिर रिव्यू पे जा सकता है, रिव्यू जो है उसको फिर वापस भेज सकता है। इस तरीके से ये यहाँ पे चलेगा। कुछ एक चीजें जब हमने इनको कही कि साहब मुझे क्या पता, आपने मुझसे जवाब ले लिया मान लीजिए अक्टूबर में, और उसके बाद आप सो गए, दिसंबर में टाइम बारिंग है, 5 दिसंबर को आप फिर आ गए कि भैया ये करो वो करो ये करो, तो डिपार्टमेंट ने कहा इसके SOP बन रहे हैं और आपको ये पता लगेगा, आप अपनी फाइल को एग्जामिन कर पाएंगे कि आपकी फाइल किस स्टेज पे है, AU पे पड़ी है या आपकी रिव्यू यूनिट पे पड़ी है या आपकी किसी और यूनिट पे पड़ी है जो कि वेरिफिकेशन यूनिट पे पड़ी है। ये सब चीजें जो है वो आप देख पाएंगे कि आपका असेसमेंट कहाँ चल रहा है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड इन द ट्रांसपेरेंसी। इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप चल के आपको जहां कहीं भी किसी तरीके का कोई भी मॉडिफिकेशन कोई अथॉरिटी करेगी तो शो कॉज नोटिस आएगा और उसका रिप्लाई आपको देने का टाइम दिया जाएगा। अब सर ये जो है मैंने आपको ये सारे पॉइंट बता दिए। इसके बाद जब ये असेसमेंट फाइनल हो जाएगा तो मैंने आपको बताया 25 नंबर पॉइंट
एओ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कलेक्शन करेगा और रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, कुछ नहीं करेगा। अब मैं सर कुछ चीजें आपको और बताना चाहूंगा जो स्कीम में है। अभी तक कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? मैडम आप वो हैं, म्यूटेड हैं। नहीं है सर, क्वेश्चन आंसर्स में कोई क्वेश्चन नहीं नहीं अभी है, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओके सुनने में नहीं है। ओके जी, आप एक्सप्लेन इतना बढ़िया कर रहे हैं ना सर, कोई क्वेश्चन से नहीं है। थैंक यू। प्लीज गो जी अहेड। जी नहीं अच्छा चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है सर। एक्सचेंज जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगी बिटवीन एसएससी एंड और एनी अदर पर्सन। सारी इंटरनल कम्युनिकेशन वो भी सारी फेसलेस होंगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होगी। ओरली नहीं होगा कि जो है वो एसी को डीसी ने बोल दिया, डीसी को जेसी ने बोल दिया, जेसी को कमिश्नर ने बोल दिया और इसको ठीक कर दे, इसको ये कर दे, वो कर दे। everything will be electronically and in writing. This is something which is very good. However, verification या इंक्वायरी अगर कहीं आएगी तो बोर्ड उसके जो मेथड है वो स्पेसिफाई करेगा। आज की डेट में इन्होंने कहा है कि वो डेडिकेटेड सिस्टम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बनाएंगे और डेडिकेटेड यूनिट आपकी रिकॉर्डिंग करेगी और आपको आपकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आपने अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो भी आपको टाइम दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर। Every notice which will come to you will be having a DSC. However, in the case of SSC, अगर वो DSC है वो दे सकता है या वो जो है EVC से भी कर सकता है। अगर उसने अपनी इनकम ऑलरेडी DSC से फाइल करी है तो वो उसको DSC से ही सबमिट करनी पड़ेगी। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी रिकॉग्नाइज किया गया है इस सिस्टम में। आपको एसएससी एड सीए करेगा जैसे टैक्स ऑडिट में करता है और आपको वैलिड पावर अटॉर्नी अपलोड करनी पड़ेगी। फिर कम्युनिकेशंस जितनी भी आएंगी आप कर पाएंगे एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और उसका नोटिस आपको भी एडिशनली आएगा बिसाइड द एसएससी इन हिज ई अकाउंट। ये जो है आपका जो सिंपल ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन्होंने बताया। थर्ड, कुछ डेफिनेशन जो इन्होंने यहाँ बताई जो कि आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से है। सारा डेटा रिकॉर्ड, जो भी इमेज, साउंड, वो सब स्टोर होगी और वो किसी तरीके से भी अवेलेबल रहेगी डिजिटाइज फॉर एवर। हैश फंक्शन, अब ये क्या होता है हैश फंक्शन? जैसे कि सर्वे या सर्च में अगर वो कोई चीज इंपाउंड करके लाते हैं, मान लीजिए हार्ड डिस्क, तो उसमें एक हैश रिपोर्ट क्रिएट होती है। हैश रिपोर्ट ये बताती है कि इसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ फाइलें हैं, कितना इसके अंदर रिकॉर्ड है और वो उसका रिजल्ट बताती है। अगर उसको कोई भी आदमी कभी भी ऑपरेट करना चाहेगा या उसको रन करना चाहेगा तो वो हैश रिपोर्ट डिस्टर्ब हो जाएगी और अलग तरीके से एलॉगरिदम क्रिएट हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कि किसी ने इसको मैनिपुलेट किया। तो ये हैश फंक्शन का ये काम है। जब आप डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा सब कुछ कर देंगे तो ये हैश रिजल्ट आपको देगा। हैश रिजल्ट जो है ये कभी भी डिस्प्यूट आए तो उस केस के अंदर ये जो है आपको सारी चीजें बताएगा। मैं मैडम 1 मिनट, मेरे घर से फोन है, आई विल म्यूट माई सेल्फ। एक्चुअली मेरी वाइफ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अच्छा सॉरी। जी, प्लीज 1 मिनट बस, आई विल म्यूट माई सेल्फ, जस्ट ए कोई मिनट, बात नहीं, प्लीज सर, ओके प्लीज ओके सर। सॉरी।
सॉरी। सो सब ठीक है ना? It's okay, सब ठीक है ना? नहीं वो एक्चुअली उसकी कुछ आंखें सूज रही हैं, वो काम मानती नहीं है, काम करती रहती है। आजकल वर्क फ्रॉम होम है, तो वो रिपोर्ट दे रहे थे। ठीक है जी, ओके, वैसे कोई प्रॉब्लम। प्लीज कंटिन्यू। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये सारा मैंने आपको बताया, ये इस तरीके से रहेगा जिसको कोई आदमी किसी स्टेज पे अगर टेम्पर करने की कोशिश करेगा तो उसका डिजिटल इम्प्रिंट्स मिल जाएगा। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैसेज, इसको भी इन्होंने यहाँ डिफाइन किया है। आपको कैसे आएगा, एक ऐप भी देंगे, ये ऐप भी बना रहे हैं, और हर लिटिगेंट को, वो जमाने चले गए जब आप सारे लोगों का मोबाइल नंबर अपने दे दो, कुछ नहीं है। एसएससी को मोबाइल ऐप भी देंगे ये, और मोबाइल ऐप के अंदर उसको सब अलर्ट आएंगे कि तेरे को नोटिस इशू हो गया, तेरे सबमिशन मिल गए, तेरा ऑर्डर पास हो गया, तेरी डिमांड क्रिएट हो गई, तेरी नील है, तेरी रिकवरी करने आ रहे हैं, या तेरा बैंक अकाउंट अटैच हो गया, या तुम्हारे जो है रिफंड हमने इशू कर दिया, रेक्टिफिकेशन कर दी। हर तरीके का मोबाइल ऐप के अंदर ये फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। रियल टाइम अलर्ट, ये भी इन्होंने डिफाइन करा कि या तो एसएमएस देंगे। यहां थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है, मैंने कल बोर्ड में बोला है कि साहब एटलीस्ट 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जरूर दें, एक इलेक्ट्रॉनिक बाय वे ऑफ ईमेल और पोस्टिंग इन दी ई अकाउंट, माई अकाउंट में, प्लस एक एसएमएस जरूर दें, क्योंकि बहुत बार आपके नोटिस ऐसे आ रहे हैं जो कि एसएससी को पता नहीं रहता। अब एसएससी 24 घंटे तो कंप्यूटर पे बैठा नहीं रहेगा देखने के लिए, तो ये जो है एसएमएस अलर्ट भी जरूर दें। आप इसको ये कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, ये उसको डिफाइन करेंगे कि कैसे जो है आपको ये आनी है। ये जो है आपका रजिस्टर्ड अकाउंट ऑफ द एसएससी जो बनेगा वो उसके अंदर अवेलेबल होंगी, या जो लास्ट आईटीआर में आपने फाइल किया होगा वो रहेगा, या जो है पैन डेटाबेस में होगा। ये सब अल्टरनेटिव है। आधार में जो आपने दे रखा होगा या ऑफिशियल एमसीए की साइट पे होगा। ये ईमेल एड्रेस की डेफिनेशन है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मीन्स ए मोबाइल नंबर or his authorized representative appearing in the user profile of the electronic file registered account। अगर AR इंट्रोड्यूस होगा तो वो AR को भी वो SMS उस पैन नंबर के साथ आएगा। डिलीवरी जो है वो कब मानी जाएगी, या ये सब और हैं, एंड नहीं है, तो ये रियल टाइम आपको दी जाएगी। इसके लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की डेफिनेशन को माना है। और एवरी नोटिस shall be delivered to any other person by sending authenticated copy to the registered email of such person। मान लीजिए मेरे केस में कंफर्मेशन करनी है आशा जी से, सो आशा जी के ईमेल में जो उनका रजिस्टर्ड है उस पर डाल देंगे कि आप कंफर्म करो, और अगर वो हो जाएगा तो ठीक है। ये सारी जो है मैंने आपको चीजें बताई। सेक्शन 13 ऑफ आईटी एक्ट 2000, इसको मैं एग्जामिन कर रहा हूं। मैंने एक एडवोकेट को लगाया है कि मुझे इसके ऊपर पूरी एक वो बनाए, प्रेजेंटेशन बना के दे कि सेक्शन 13 में क्या चीज कहाँ है, और वो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ दिन में हम इसको बना सकें। किसी भी आदमी को पर्सनली नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि उसका ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो ओरिजिनल एओ ने भेजा है उसको मॉडिफाई नहीं करा जाएगा। आपको पर्सनल हियरिंग मिल सकती है सब्जेक्ट टू दी चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल इन चार्ज ऑफ द रीजनल ई असेसमेंट चार्ज इफ ही अप्रूव्स। उसको राइटिंग में ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि वो आपको देगा या नहीं देगा,
तब आपको पर्सनल हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मिलेगी। ये जो है इन्होंने इसके अंदर एक जो है प्रोविजन डाला है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही ये चीजें चलेंगी, आपको उससे ही नहीं है ना। अगर आपने किसी भी तरीके का कोई भी नई चीज करी तो पेनल्टी वगैरह भी अब एओ की जगह एनईएसी लगा पाएगा। एनईएसी इसको जो है सभी तरीके के शो कॉज नोटिस ये वो सब कुछ काम एनईएसी करेगा। अब मैंने ये जितनी सारी चीजें समझाई इसको मैं एक चार्ट के फॉर्म में आपको बताना चाहूंगा। तो नेशनल ई असेसमेंट 143 इशू करेगा, 15 दिन में रिप्लाई आप दे दें। अगर आपने 15 दिन में रिप्लाई दे दिया तो एनईएसी पे चला जाएगा और एनईएसी उसको किसी रीजनल अथॉरिटी में असेसमेंट यूनिट को असाइन कर देगा थ्रू ऑटोमेटिव एलोकेशन। अगर आप 15 दिन में नहीं जवाब देंगे और कोई एक्सटेंशन भी नहीं लेंगे तो वो सीधा जो है एनईएसी जो है वो आपको जो है सीधा शो कॉज नोटिस इशू करेगी और शो कॉज नोटिस इशू के बाद अगर आप उसको जवाब दे देंगे तो फिर वो जवाब आपको ऑटोमेटिक सिस्टम से फिर जो है असेसमेंट यूनिट पे चला जाएगा। और अगर आप फिर भी ढीठ हैं और आपने फिर कोई जवाब नहीं दिया तो असेसमेंट यूनिट को जो है वो ये कहेगा कि अब आप इसका ऑर्डर जो है ड्राफ्ट मेरे को भेज दो। और वो ड्राफ्ट ऑर्डर कैसे बनेगा ये अगली स्लाइड पे। अगर आप इसको जवाब दे देंगे तो वो 3 ऑप्शंस होंगी आपकी असेसमेंट यूनिट के पास। आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, वेरिफिकेशन के लिए वो कह सकता है तो वेरिफिकेशन यूनिट में एनईएसी भेजेगा ऑटोमेटिव सिस्टम से, या वो टेक्निकल असिस्टेंस मांग सकता है या वो दोनों मांग सकता है। वो दोनों चीजों के लिए वो लिखेगा कि मुझे टेक्निकल असिस्टेंस भी चाहिए और वेरिफिकेशन भी करानी है। ये सब प्रोसेस एनईएसी के पास दोबारा जाएगी और एनईएसी उसको फिर जो है वो एलोकेट करेगी। एलोकेट जो जैसे करेगी वो मैंने आपको बताया है कि वो आपकी जो जाएगी, अगर वो चाहता है कि सब कुछ करने के बाद जब ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आ गया फिर मुझे या तो पास कर दो, उसको दे दो, एसएससी को फाइनल शो कॉज नोटिस दे दो, नहीं देना तो असेसमेंट पास कर दो, और नहीं तो वो रिव्यू यूनिट को फिर रेफर कर सकता है। और रिव्यू यूनिट अगर उसको कोई चेंज करेगी सजेशन तो वो नई असेसमेंट यूनिट पे जाएगा, क्योंकि अगर वो कम करेगी तो कोई दिक्कत नहीं, सेम एक्सेप्ट करेगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिव्यू यूनिट अगर एनहांस करेगी तो नई एयू के पास जाएगा। इसका मतलब पुरानी एयू ने काम ठीक नहीं किया और रिक्वायर्ड एक्शन अंडर दी प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेटिव उसके अगेंस्ट भी लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करा। और इसी तरीके से ये फाइनल ड्राफ्ट आएगा। शो कॉज नोटिस, रिस्पॉन्ड बाय एसएससी, नो फाइनल ऑर्डर, यस एयू यूनिट, रिवाइज ऑर्डर, if it is prejudicial to the interest अगेन जाएगा एनईएसी, फिर शो कॉज नोटिस इशू करेगा, शो कॉज के बाद फिर रिप्लाई आएगा और वो फाइनली ऑर्डर बनेगा। ये कुल मिला के सारा जो है आपका जो है प्रोसेस है इसके अंदर। अब जो इश्यूज हैं वो जो है कई इसमें हैं। टाइम लिमिट जैसे मैंने बताया कि कितने टाइम में एसएससी का निवारण होगा, ये ना हो जैसे हमारे यहाँ बाहर खड़े रहते हैं 25 दिसंबर में, तो वो यहाँ पे 25 दिसंबर को सारे एसएससीओ का लेके आ जाएं। 263 का क्या रिव्यू होगा ये भी आएगा। एज ऑन टुडे मैक्सिमम साइज इज 10 MB पर फाइल एंड मैक्सिमम 10 फाइल्स एट ए टाइम कैन बी अपलोडेड। और आपको ये बता रहा हूं, अगर आपने पार्सल रिप्लाई दिया तो आपका जब तक पूरा रिप्लाई नहीं हो जाएगा या आप
कोई शो कॉज ये कह देगा कि अब मैं आपका कोई रिप्लाई नहीं लूंगा, तो वो सीधा का सीधा तभी मार्क होगा एयू को, उससे पहले नहीं होगा। क्या आपके रीएड्रेस कर सकता है कोई रिस्पॉन्ड फुली अर्लियर हो? यस, ये भी एक इशू है जिसको एड्रेस करना बाकी है। अब ये कुछ डेटा है जो पिछले साल की असेसमेंट का डिपार्टमेंट ने इशू किया है और 17 अगस्त तक ये सिचुएशन है। ये पहले सिर्फ और सिर्फ 7 यूनिट होती थी, ये 8 यूनिट चेन्नई में और दिल्ली में, उसके बाद कोलकाता में और मुंबई में और एक शायद अहमदाबाद में थी। बाकी सब जो है यूनिटें नहीं थी यहाँ एप्लीकेबल था। 58,000 केस सेलेक्ट किए। बैक एओ पे 132 वो केसेस होंगे, 122 जिनके अंदर कोई सर्च या सर्वे हुआ होगा या वो जो है स्पेशल ऑडिट में गए हैं या किसी और चीजें। केसेस वेयर आज तक रिप्लाई नहीं आया 20,000, आधे के करीब केसेस ऐसे हैं। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर 10 में इशू हो गया है। इसी तरीके से ये डेटा है और ये 16 अगस्त 5 बजे तक टोटल रिपोर्ट डिपार्टमेंट में थी। ये मेरा जो है टोटल फेसलेस अपील आएगा। सिटीजन चार्टर है। सिटीजन चार्टर जो है आपको ये बताता है कि क्या करना है, किसकी क्या ड्यूटी है। ये इसके ऊपर अगर चाहें, उसको शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर ऑर्गेनाइजर की तरफ जा रहा हूं और आप लोगों की कोई क्वेरी फेसलेस से हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं जो है वो किसी और चीज पे डील करना चाहूंगा। कोई क्वेरी नहीं है सर। फैक्ट सर, आपका क्या आइडिया, ये दिस विल बी बेनिफिशियल टू द एसएससीज? बिल्कुल जी, सबके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्किल्स मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना इसमें। अब तो सब कुछ का काम ही वही है। वो जो है ना महाभारत में जब जो है वो स्वयंवर चल रहा था तो वो अर्जुन को गुरु ने पूछा कि भाई तूने सीधा उसकी आंख में मार दिया तो क्या चीज थी, तू कहीं भी नहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ? तो कहता है महाराज मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, बाकी सब ब्लैंक था, तो इसलिए मेरा तीर वहीं लगना था। तो अगर मुझे ये मालूम नहीं है कि एयू या वेरिफिकेशन यूनिट या जो है वो तीर कहाँ जाके मारेगी तो मैं फेलियर हूं। ड्राफ्टिंग स्किल और भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। रीजनल लैंग्वेज, हाँ राइट, वो एक इश्यू था। उसमें भी कन्वर्ट करने के सॉफ्टवेयर इन्होंने कर लिए। अच्छा। आज की डेट में भी एप्लीकेबल हैं। आप हिंदी में, पंजाबी में, हरियाणवी में, तेलुगु में, मराठी में इसमें डॉक्यूमेंट या सबमिशन फाइल कर सकते हैं। ओके सर, बट कहीं ऐसा हुआ जैसे अभी सपोज हरियाणा का एयू कहीं वहां का साउथ का हो गया, या फिर वो कैसे असेसमेंट करेगा? क्यों नहीं करेगा, उसको कन्वर्ट करके मिलेंगी। हाँ जी, मुश्किल कुछ ना सर, नेचर ऑफ बिजनेस का हो सकता है इम्पैक्ट। जैसे हरियाणा में जैसे सारा एग्रो बेस्ड है और हाँ। कि जैसे महाराष्ट्र वाले को हरियाणा के एग्रो के बारे में पता ही नहीं हो कि प्रैक्टिकली बिजनेस कैसे चलता है यहाँ पे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो? आपको इसका निवारण भी दिया है उन्होंने? नहीं दिया उन्होंने? कैसे सर? ये देखो, ये इन्होंने क्या कहा है। क्या टेक्निकल यूनिट क्या काम करेगी? एनी असिस्टेंस, एडवाइस ऑन लीगल, अकाउंटिंग, फोरेंसिक, वैल्यूएशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डाटा एनालिटिकल और एनी अदर टेक्निकल मैटर। तो आपको एक बात बता दूं, मैं जब प्रैक्टिस शुरू करी थी समवेयर 2-4 साल बाद 93 में, दिल्ली में एक ब्रोकर वार्ड बन गया था अलग से। ऑल ब्रोकर विच आर टू बी असेस्ड, they were assessed in at that time range 7. कॉन्ट्रैक्टर एक ही वार्ड में आते हैं। तो ये नेचर ऑफ एसएससी के हिसाब से आपके एयू बना देंगे सर, ये आपको बता रहा हूं मैं, आप बिल्कुल ख्यालों में मत रहिए। और ये सब डेटा उसको देंगे साथ में कि साहब ये इंडस्ट्री नॉर्म है, ये इसकी जीपी रेशो आती है, ये इसकी इतनी लाइसेंस कैपेसिटी है। ये डेटा जो है इंटेलिजेंस जो है टूल्स
जो है ये सारे बन गए हैं। 360 डिग्री आपका प्रोफाइल अवेलेबल होगा असेसिंग ऑफिसर के पास, जो असेसिंग यूनिट आपका काम करेगी। तो ये सारा आप देखो स्लाइड, इसमें क्या कहा है उसने। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है बस ना जयदीप का, वो बोल रहे हैं कि अपील्स का, शायद उन्होंने वैसे सुना नहीं होगा पहले ना, अपील्स के लिए बोल रहे हैं। अपील्स Are all 25 तारीख, appeals also made faceless? हाँ 25 तारीख से होगी, उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। एक ही बार में आशा जी कैसे काम खत्म हो जाएगा, कई बार बुलाना पड़ेगा। नहीं, क्वेश्चन आया था, वो आपने तो पहले मेंशन कर दिया था, मे भी उन्होंने लेट ज्वाइन किया थोड़ा। हाँ जी कोई बात। हाँ जी तो ये जो है आपका टोटल है। सर, आपकी स्लाइड भी बहुत अच्छी है, प्लीज शेयर इट विद अस। हाँ जी बिल्कुल भेज बहुत ही दूंगा। डिटेल में। सर एक क्वेश्चन है, ये जो पार्शियल रिप्लाई आपने क्या कहा कि भाई हमने पार्ट रिप्लाई कर दिया, वो एयू को मार्क नहीं होगा। नहीं ये डिसाइड कैसे होगा एसएससी के पास कि पार्शियल है या उसको कंप्लीट मान लिया ए उन्हें फिर एसएससी में? नहीं सर, जब आप रिप्लाई फाइल करते हैं तो वहां आपसे ये पूछता है, अच्छा, इज इट फुल रिस्पॉन्स और पार्ट। ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू। चलें जी। यस सर। चलिए सर, सिटीजन चार्टर, प्रोवाइड फेयर कर्टियस, जब मिलेंगे नहीं तो कर्टियस क्या है, रीजनेबल ट्रीटमेंट। कर्टियस में ये है, मैं आपको बताऊं एक, मैं अपना एग्जांपल, नॉर्मली क्या होता है जब जो है वो आपका मान लीजिए डिमांड पेंडिंग है, तो नोटिस जब आता है तो क्या लिखा होता है, अगर तुमने 15 दिन में नहीं दी तो तुम्हारा बैंक अकाउंट अटैच कर देंगे, तुम्हें घर से उठा लाएंगे। तो कर्टियस में ये बात है 2004-5 की, एक टीआरओ था, तो वो टीआरओ साहब का जब लेटर आया तो मेरा क्लाइंट ये कहता है भाई इसकी डिमांड दे दो। मैं साहब इससे पहले जब लेटर आता था आपने तो कभी नहीं कहा कि भाई डिमांड दो, बोले लड़ाई करो ये करो ये करो। कहते इसका लेटर पढ़ो। उस लेटर में ये लिखा था कि साहब मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी इतनी डिमांड पेंडिंग है, जो कि मुझे एओ ने फला फला रिकवरी सर्टिफिकेट से भेजी है। मेरे को ऐसा विश्वास है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आपकी कोई डिमांड पेबल नहीं होगी। कृपया करके इसको एग्जामिन करें। मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है, और अगर आपने डिमांड नहीं देनी तो उसके कागज आपको आने की आवश्यकता नहीं है, किसी के थ्रू भेज दे। और अगर ये पेबल है या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। अगर आप पूरी नहीं दे सकते तो आप जो है उसको इंस्टॉलमेंट बनवा लें, और अगर आपको किसी और तरीके की कोई चीज करनी है तो आपको चाय पे आमंत्रित करता हूँ। मेरा क्लाइंट कहता है भैया इसकी डिमांड दे दे, क्योंकि अगर मैं इसके पास चाय पीने गया और मेरा काम नहीं हुआ तो ये अगली बार उठवा लेगा। तो ये जो है कई होते हैं, कई ये ऐसे होते हैं जो कि आपको अपना रोब दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कर्टियस और रीजनेबल ट्रीटमेंट देनी है। ये सिटीजन चार्टर में स्टैट्यूटरली फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया। ट्रीट टैक्स पेयर एज ऑनेस्ट, इट इज ए कंप्लीट डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर status to think that assessee has always not paid the correct tax. ये नहीं दिया तुमने, वो नहीं दिया, ये खर्चा गलत है, वो है। No, they say we presume it that you are an honest person unless and until you have a reason to believe otherwise. So you have to have a reason. That is why 143(2) में कम आएंगे। Provide mechanism for appeal and review. Provide complete and accurate information. ये नहीं कहेंगे कि आप अपने सारे जो है सेल बिल फाइल कर दो, सारे परचेज बिल फाइल कर दो, सारे खर्चों के लेजर फाइल कर दो, सारे वाउचर फाइल कर दो। उसको ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, टाइमली डिसीजन होगा, करेक्ट अमाउंट का टैक्स जो है आप, ये जो है इस तरीके से प्रीवियसी मिलेगी, इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होगी, ऐसे कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, और
ये नई चीज दी है जो 9 नंबर पे मैं पहली बार बताने जा रहा हूं। आज तक इनकम टैक्स या किसी भी अथॉरिटी में नहीं हुआ। होल्ड इट्स अकाउंटेबल, अथॉरिटीज आर अकाउंटेबल नाउ, आज तक वो नहीं थे। तो ये जो है वो था एनेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस। ये नहीं है कि सारे केस संजय अग्रवाल से कराओ, किसी से भी करा सकते हो, दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में, हिसार में, फतेहाबाद में। और वो एक आपके पास हंसी है जहाँ के लड्डू खाता हूँ मैं आके हमेशा, अब महरूम रहूंगा क्योंकि आपने यहाँ पे मुझे जो है ई जो है प्लेटफॉर्म पे बुला लिया। मैकेनिज्म टू लॉन्च कंप्लेंट, इसका ईमेल आईडी आएगा। फेयर इनजस्टिस, सर्विस स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट पीरियडिकली, ये सब आएंगे। और कॉस्ट जो है आपकी। अब आपसे क्या एक्सपेक्टेशन? ऑनेस्ट एंड कंप्लाइंट, नॉन कंप्लाइंट नहीं बनी। इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, आपको लॉ के बारे में पता होना चाहिए। एक्यूरेट रिकॉर्ड रखिए, ये नहीं है कि किताबें नहीं मिल रही, अकाउंटेंट भाग गया, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। एंड you will also know that what your CA or your professional is doing, because आपको जो भी चीज अपलोड होगी वो आपके माई अकाउंट में पूरी तरह दिखेगी। ये नहीं है कि बाद में आपको ये कहें कि मैंने तो जी CA साहब को दे दी थी, उन्होंने तो चस्पा नहीं करी, आपको दी नहीं, फाइल नहीं करी, क्योंकि माई अकाउंट में CA और आप दोनों ही देख पाए। पे इन टाइम, रिस्पॉन्ड इन टाइम, ये सब मिला के टोटल जो है हमारा है। अब ये मेरे नोटिफिकेशन है 61-62 2019 के सॉरी, जो मॉडिफाई करे 61 को 60 में करा और 62 को 61 में रिवाइज करा, और 13/8 को इन्होंने 119 से ये बोला कि ये सेंट्रल चार्ज में। और लास्ट जो है सर्वे के लिए इन्होंने पावर अब रिस्ट्रिक्ट कर दी, लॉ में चेंज नहीं किया है। बाय वे ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 इन्होंने ये कहा कि अब जो है ये सर्वे सिर्फ 2 ही अथॉरिटी कर पाएंगी, बाकी लोग सर्वे नहीं कर पाएंगे। या तो DGIT इन्वेस्टिगेशन, CCIT प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर या TDS कर सकता है, और कोई भी नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन विंग का DGIT या CCIT या प्रिंसिपल CIT ऑफ TDS रेंज, यही 2 लोग सर्वे कर सकते हैं। 13 अगस्त 2020 के बाद किसी भी तरीके का होली दिवाली किसी तरीके का कोई अब सर्वे पॉसिबल नहीं है, ना ही आपको कोई ये जो है पूछेगा। इसलिए ये बहुत अच्छी पावर इन्होंने जो है विड्रॉ करी है। इसको जो है इन्होंने ये कहा कि आप जो हैं अब निश्चिंत होके ऑनेस्टली टैक्स पे करें, हम आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं दिए फिर हम आपको छोड़ेंगे। विद दिस इट इज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। अगर आप लोगों की कोई एक्चुअल नोटिफिकेशन में अगर आपने कहीं पढ़ा है या आपको नोटिफिकेशन में कोई चीज है तो पूछ सकते हैं, या किसी और चीज पे आपने मुझसे पूछना हो तो पूछें। जो नेचुरल जस्टिस की आपने बात करी थी, वो नेचुरल जस्टिस इम्बेडेड है हर जगह। लॉ ऑफ एविडेंस अपनी जगह चलेंगे। कुछ एक क्वेश्चन वेरियस सीनियर काउंसिल्स आर रेजिंग, आई एम कंसिडरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस, लेकिन लॉ में सब चीजें मैं ये प्रज्यूम करके चलता हूं, अगर किसी तरीके का कोई लेकुना अगर अभी रह गया और हम सब लोग सारा दिमाग लगा के उसको अभी बता देंगे तो वो सब रेक्टिफाई हो जाएगा, बाद में बताएंगे तब भी रेक्टिफाई हो जाएगा। सो प्लीज डू नॉट गेट परसुएडेड। और जो है मुझे ऐसा बताया गया है कि बॉम्बे में किसी ने एक रिट फाइल करी है, मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप जो है वो नेचुरल एक उसको हियरिंग दें, वो भी इसमें प्रोवाइडेड है, बट विद स्पेसिफिक प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर की ही परमिशन से मिलेगी। सो दीज आर दी बैकग्राउंड ऑफ दिस। आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो या अगर मेरे टॉपिक में कोई चीज रह गई हो
then you can ask. सर नेक्स्ट टॉपिक, ये तो बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया आपने ना, बहुत डिटेल्ड में। इनफैक्ट नेक्स्ट वो जो लॉ ऑफ एविडेंस का भी हमने टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल कवर किया हुआ है ना। देखिए जी, लॉ ऑफ एविडेंस, देखिए लॉ ऑफ एविडेंस पे मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई है। नहीं, ऐसी थोड़ा सा वैसे शेयर कर दीजिए आप। हाँ जी, लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? एक्सटेंट इनकम टैक्स। देखिए, अगर आपको एलिगेट किया जा रहा है तो सबसे पहले जो सिटीजन चार्टर में इन्होंने कहा कि यू विल बी ट्रीटेड एज ऑनेस्ट अनलेस एंड अनटिल देयर आर एडवर्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद देम। अब लॉ ऑफ एविडेंस में क्या हो सकता? फॉर एग्जाम्पल, आपसे उसने कहा कि आप जो है वो डिटेल सबमिट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन लिए तो वो ये कहता है कि आप जो है 68 की रिक्वायरमेंट पूरे करिए, आप जेन्युइननेस बताइए, क्रेडिट वर्दीनेस बताइए और आप कंफर्मेशन दीजिए और आप उसकी जो है मुझे डिटेल दें। या वो ये कह सकता है कि आप मुझे उसका पैन नंबर और ये दे दीजिए। अगर वो ये कहता है कि मुझे ये चीजें दें तो लॉ ऑफ एविडेंस ये कहता है आई एम ड्यूटी बाउंड टू सबमिट ऑल दोज थिंग्स एंड दैट इज वाई मैंने कहा अर्जुन की आंख नजर आनी चाहिए। अगर वो ये कहता है एडिशंस में आप 68 को पूरा करें और मैं 68 के लिए कंफर्मेशन लगा के चुपचाप बैठ जाऊंगा तो ये लॉ ऑफ एविडेंस में मेरे को वीकनेस है। लॉ ऑफ एविडेंस ये कहता है मुझे 68 में 3 चीजें पूरी करनी है। पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई के लिए मैं पैन दे सकता हूँ, आधार दे सकता हूँ, उसकी कोई चीज दे सकता हूँ। कंपनी है तो मैं उसका इनकॉर्पोरेशन, एमसीए की कोई चीज दे सकता हूँ, डिन नंबर, सिन नंबर जो भी है दे सकता हूँ। पार्टनरशिप है तो उसकी कोई चीज दे सकता हूँ, पैन दे सकता हूँ, कोई जीएसटी का नंबर दे सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरे से मैंने परचेज की डिटेल फाइल करी और परचेज की डिटेल में उसने मुझसे बोला इनके मुझे जीएसटी या वीएटी नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दे। अब मैंने आधे में दे दिए, बाकी में नहीं दिए, तो वो मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आप मुझे इनकी कंफर्मेशन दीजिए। अब आपने परचेजेस दिखा रखी हैं 1 करोड़ की और वो 1 करोड़ वाला आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो गुड्स जीएसटी में कवर्ड है, तो आपके पास एविडेंस नहीं आपने दिया। तो लॉ ऑफ एविडेंस कहता है कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, दैट वी हैव टू प्रोवाइड इट। अब सेकंड ये होगा, जब आप प्रोवाइड कर देंगे तो उसको रिबेट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, हमारी नहीं होगी। तो ये है इसके। अब इसके बाद मान लीजिए मैं जो है उसको ये कहता हूं कि साहब जो है ये जो है ना आदिश से पूछो, आदिश ने कहां से दिए पैसे। मेरा तो जो है वो ओनर डिस्चार्ज हो गया, मैंने आदिश की कंफर्मेशन लगा दी, आदिश की आईटीआर रिटर्न लगा दी। अब आदिश की आईटीआर रिटर्न, भाई मानियो मत, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी रिटर्न मान लेना, वो सिर्फ 2 लाख की है और अमाउंट दिया हुआ मैंने 15 करोड़। सर पैसा दे देंगे, बात तो बात ही बन जाएगी। ठीक है ना जी। तो अब लॉ ऑफ एविडेंस कहता है भाई देखो ये कैसे काम चलेगा। तो ये भी हो सकता है कि भाई इसको कहीं से सरकार से ऐसा पैसा मिला हो जो नॉन टैक्सेबल हो, जैसे पद्म विभूषण अवार्ड मिल गया कहीं, तो ये उसमें से दे सकता है। अपने भाई को दिया हो तो वो जब मैं वहां एविडेंस में फाइल करूं तो मैं बोलूं आदिश और रिलेशनशिप माय रियल ब्रदर पद्मश्री अवार्डी, तो क्या होगा, अब जो है वो उसके पास एविडेंस आ गया। अब वो मुझे फर्दर क्वेश्चन करेगा तो उसको पहले एक कॉर्पोरेट व्हील की तरह व्हील उठाना पड़ेगा। तो समहाउ व्हाट आई वांटेड टू से कि अब ये जमाना, जैसा आपने चेयरपर्सन जी बताया कि अब जमाना 4 साइटेड लोगों के लिए आया। मैं अपने जूनियर्स को, यंग लोगों को हमेशा बोलता हूं कि जो लोग आज से आने वाले 10 साल में, 5 साल में कहां जो है वो जाएगी, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो बिजनेस मॉडल है, वो कहां जाएगा, अगर वो एनविसेज नहीं कर पाए आप तो यू विल बी
आउट ऑफ बिजनेस, नोकिया आउट, HMT आउट। एक एंड्रॉयड ने नोकिया खत्म कर दिया, एक HMT घड़ी, एक अच्छी भली कंपनी, उसको जो है आउट कर दिया टेक्नोलॉजी से। डिजिटल आ गई, 25 रुपए के अंदर डिजिटल वॉच मिल जाती थी। बच्चे रोज जो है घड़ी फेंक आते थे, अब बोला फेंक क्या, हफ्ते में तेरे को दूसरी दूंगा। चेंज हो गया। आपके ऑनलाइन शॉपिंग एप्स, मेरे जैसा, मैं 86 का पास आउट हूं मैडम, और मेरे जमाने में कंप्यूटर नहीं होता था, 2 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। लेकिन आज की डेट में प्रभु की दया से काउंसिल में रह के मैंने IFRS भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। तो ये जो है आपको हैंस फोर्थ नेक्स्ट 10 ईयर में क्या आएगा, ये जो है, जो लोग उस ट्रेन में, जब वो ट्रेन स्लो थी नहीं चढ़े, और एक बार ट्रेन तेज हो गई और फिर वो कोशिश करेंगे कि वो ट्रेन में चढ़ पाए, तो वो गिरेंगे ही। तो टुडे वी हैव टू टेक दिस चार्ज। आई थिंक टाइम जो है अभी कम बीता है। आपकी कोई जनरल क्वेरीज हो तो वो पूछ सकते हैं। सर इसमें 131(1) और 133(6) के नोटिस का क्या स्कोप होगा ई असेसमेंट्स में? देखिए जी, 133(6) तो 143(2) से पहले ही कर लेंगे जहां तक, बाकी सब हैं, अगर आप सब अवेलेबल हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और सब इलेक्ट्रॉनिक होंगे। सभी इलेक्ट्रॉनिक होगा, कुछ नहीं, हर चीज, और दिन नंबर भी होगा। आपको अगर 133(6) का नोटिस आएगा तो वो दिन नंबर भी होगा। सर आपका ना टाइम तो है, क्वेरीज मेरे ख्याल से है नहीं किसी मेंबर्स की, तो थोड़ा सा जो लेटेस्ट, परसों इनफैक्ट आई हैड लिसनड टू योर वेबिनार इन अमृतसर, जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स पे था, चेंजेस इन ITR फॉर्म्स, वो ले लेता हूँ। पॉसिबल थोड़ा सा वो ले लेते हैं ना, बहुत अच्छी थी प्रेजेंटेशन वो भी आपकी। अभी 1 मिनट में ले लेते हैं, मैं स्क्रीन स्टॉप करूंगा। हाँ जी। हो गया। सर संजय जी, संजय जी। हाँ जी, हाँ जी, आगे जी प्रेजेंटेशन। आगे एक क्वेरी एक्चुअली अभी देखी मैंने गौरव जैन जी की। If there are 30 questions in 142(1) and we have 15 days time to reply the same, हाँ जी, we have submitted the reply for 28 points in 15 days. हाँ जी, as a partial response, then will it be non-compliance? No. ठीक है बस। You will write in the letter that I have replied and for the rest I need time. 4 दे दिए, आप फिर टाइम मांगिए, आपको टाइम मिलेगा, और टाइम नहीं देगा तो 144 का शो कॉज नोटिस देगा, उसके लिए टाइम देगा। रीजनेबल और स्टैंडर्ड चार्टर्ड को अपने जो हमारा चार्टर है सिटीजन चार्टर, उसको कोड कर दे कि रीजनेबल मिलेगा, सब कुछ देगा। ठीक है जी।
हाँ स्क्रीन आ गई ITR फॉर्म्स पे, थैंक यू सो मच। ये चलिए जी, ये सब चीजें छोड़ देते हैं। हाँ जी मेन फॉर्म से अभी ये कल कुछ फॉर्म्स आ गए हैं, उनको मैं अपडेट नहीं कर पाया हूँ। ओके नहीं, फॉर्म्स मैंने पॉइंट सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन उनका स्कीमा में मैं चेक नहीं कर पाया हूँ कि कोई 5 तक फॉर्म मुझे बताए हैं कि जो है वो स्कीमा जो है किसका आ गया है। ये सब जो है 5 नंबर में 9 लिख रखा है, ये जवाब आ गई है। ये सब 3 की भी आ गई है, 1 2 की पहले आई हुई थी, 4 की आई हुई थी, 3 और 5 की भी आ गई है, लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर वाले ने अभी अमेंड नहीं किया। हाँ हमारे सॉफ्टवेयर में भी नहीं हुआ अभी। हाँ जी, ये 6 फॉर्म में चेंज है जी। शेड्यूल DI जो कि ऑर्डिनेंस से, मैंने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, तो आप ये नहीं सोचेगा जानबूझ के थोड़ा सा बैंडविड्थ लग रहा है कहीं। हाँ इट्स ओके। आप हमारे एक ऑर्डिनेंस जो आया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन by the President of India on 31st March 2020, whereby 3 things have been extended up to 30th June, and then wide notification dated 24th June, they were further extended to 31st July. अब ये इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल शेड्यूल इसमें डाल दिया है, शेड्यूल DI। इसके 3 पार्ट हैं। पार्ट A which seeks the information relating to investment, deposit, payments which are required under chapter 6A। ज्यादातर हम कहते हैं ATC वगैरह, लेकिन चैप्टर 6A की कोई भी किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, पेमेंट अगर आपको करनी थी तो वो आपको एक्सटेंड हो गई 31 जुलाई तक। पार्ट B ये कहता है कि अगर आपको कोई अमाउंट एलिजिबल था 10AA में और उसकी कोई टाइम लाइन्स थी, वो जो है वो एक्सटेंड हो गई 31 जुलाई तक, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ दी। सिमिलरली लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म से रिलेटेड अगर 54 या 54G के अंदर कोई एक्शन रिक्वायर्ड था, फॉर एग्जाम्पल एनी पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज और कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए इन्होंने शेड्यूल DI को अलग से बना दिया है। अब शेड्यूल DI अभी स्कीमा में जो आया था वो 30 जून ही है। अब कल जो आया है वो मैं देख नहीं पाया हूं, इसको मैं देखूंगा। ये 31 जुलाई प्रिज्यूम कर लें। इसमें जो है 2 पार्ट दिए हैं। पहला ग्रे है, ग्रे में आपको पूरा अमाउंट जो कि एलिजिबल है, पेड नहीं है, प्लीज बी केयरफुल, amount eligible which include the amount paid during the extended period. For example, अगर मान लीजिए मैंने PPF में 31 मार्च तक 50,000 जमा कराए, 60,000 जमा करा सकता था और 10,000 मैंने जुलाई में कराए, तो मैं यहाँ 60,000 दूंगा। और ये लेकिन किसी भी तरीके का थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं बढ़ाई है इन्होंने, थ्रेशोल्ड लिमिट सारी वही है। और जो टोटल अमाउंट है मैं यहां दूंगा, उसमें से जितना अमाउंट 1/4/2020 और 31 जुलाई 2020 के बीच में दिया है वो यहां दो। Why? Because they would like to know that in the next year whether you are claiming this deduction or not. Plus, if your cases are fixed and it is being asked by you, please give the bank statement or the source of that particular investment. Then how you will give, because this will not be reflected in your financial account in 31st March 1920. It will be beyond the financial year. It is the new thing which is there in all 6 forms. ये शेड्यूल DI का पार्ट B है, जहां पे इन्वेस्टमेंट मेड का भी एक्सटेंडेड कर दिया पीरियड। ये जो है 10AA या SEZ जो है उनसे रिलेटेड है।
अगर आपके कोई इसमें फर्स्ट ईयर ऑफ क्लेमिंग है तो वो भी एक्सटेंड कर दी उन्होंने 30 जून को। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में ये डिडक्शंस उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी 31 जुलाई तक। वो जो है ग्रे में टोटल देनी है और वाइट पोर्शन में विच इज बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, LTG एंड STG बोथ। ये दो डिडक्शंस और आई हैं विच आर देयर इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग as provided under section 80EE and also interest on loan for buying electric vehicle under section 80EEB। ये दो डिडक्शंस और आई हैं जो लास्ट ईयर से अलग हैं। ये जो है इसमें प्रोवाइड। इसी तरीके से शेड्यूल 6A में ये दो आपको पार्ट सी में सर्टेन इनकम्स में दो डिडक्शन ATLIA1, ATLIA एंड ATPA, ये जो है डिडक्शंस इन रिलेशन टू, ये जो है बैंकों के मर्जर से रिलेटेड है। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो है हमारी कंपनीज हैं जो गुजरात की गिफ्ट सिटी में है वहां से रिलेटेड है। और ATPA हमारा जो है वो 5 ईयर से जो है बढ़ा दिया गया है पीरियड, उसमें जो है 23-24 है। उसके लिए इन्होंने यहाँ इसलिए दे दिया है क्योंकि वो 18-19 था, अब 19-20 और 20-21 में भी वो कवर्ड होगा, इसलिए ये नए कॉलम आ गए। अब वो चेंजेस जो 1 से 4 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया। मैं यहाँ पे बिल्कुल कैटेगरली बताना चाहूंगा that this particular part A journal is applicable only to those assessees, those who are having below taxable income. Means they are not having any taxable income. However, they are having any type of these three transactions, then only they have to file the return and fill up this column. Otherwise, nobody who is having a taxable income is required to submit these information. इसके अंदर आपका 1 करोड़ से ऊपर अगर अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है इन 1 और मोर देन 1 करंट अकाउंट, सेविंग बैंक CC नहीं है, करंट अकाउंट है, कैश भी नहीं है, एनी अमाउंट विच इज बीइंग डिपॉजिटेड, वो आपको रिटर्न फाइल करनी है और यहां देना है अमाउंट। एनी अमाउंट एक्सपेंडिचर if you have incurred for foreign travel of you or any other person, तो वो आपको देना है 2 लाख से ऊपर। तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट सेकंड कंडीशन। यहाँ 2-3 क्वेश्चन अराइज हो, ये मैंने फ्लैग करे हुए इशू हैं, कुछ बोर्ड में भी बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रदर है USA में और वो मेरे बेटे को और मेरी वाइफ को वहां बुलाता है और 2 लाख से ऊपर खर्चा करता है, वो इंडिया में एक्सेसिबल नहीं है, US बुलाता है, तो क्या रिटर्न उसको फाइल करनी है? अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन एज ऑन टुडे यस, बट इसका कोई ना कोई कार्व आउट आएगा। दूसरी चीज, मान लीजिए मेरे फादर टैक्सेबल एसएससी नहीं है बट ही इज हैविंग फंड्स, सो he gives me 2 lakh rupees or 3 lakh rupees for example, which is a gift and not taxable in income tax. Now out of that 3 lakh, or let us say he gives me only 2,10,000, and what I do that I out of that 2,10,000 spend 1,50,000 rupees
on my traveling. But my father has not given me for traveling. He has given me a gift, which is not taxable in 56(2). और मैं बाकी 50,000 या 1,00,000 अपने बेटे को कहता हूं मेरे अकाउंट में दे दो. He is also not assessee. Then all three are not required to file the return, because neither my father has incurred expenditure on his or any other person, nor myself if I am not an assessee, nor my son has spent that amount on any other person or himself exceeding 2 lakh. So this is very important. Next, if you have incurred an expenditure of an amount or aggregate exceeding 1 lakh on consumption of electricity. अब ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है. मैं एक बिल्डिंग में रहता हूं जहां जनकपुरी में, ये 4 फ्लोर है. मीटर नीचे वाले बाबा जी के नाम है, और मेरा जो है बिजली का बिल महीने का 24-25 हजार आता है, और लॉकडाउन में 35,000 आ रहा है. बाबा जी मेरे से चेक ले लेते हैं, कैश ले लेते हैं, और वो पेमेंट देते हैं. वो असेसी है नहीं, रिटायर्ड है, 1 लाख से ऊपर है. अब वो तो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा. अब उसको रिटर्न फाइल करनी है क्या? तो सर अगर वो अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है एक्सीडिंग 1 लाख, उसका अपना बिल है, या अपने ब्रदर के लिए वो दे रहा, वो एक्सपेंडिचर है, और ब्रदर उसको रीइंबर्समेंट नहीं दे रहा, या उसको कोई और नहीं दे रहा, तो उसको रिटर्न फाइल करनी है. बहुत सारे केसेस में मीटर उन लोगों के नाम है जो है ही नहीं इस दुनिया में, तो क्या उनको उनकी रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी? तो अगर ऐसे केसेस हैं तो बहुत प्रॉब्लम. इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रेंटल 5,000 दिया हुआ है दादाजी के टाइम का साल के, और बिजली का बिल दादाजी के नाम से लगाया या मेरे नाम से लगाया, और महीने का 5 लाख का बिजली का बिल आता है, तो क्या मुझे रिटर्न फाइल करनी है? नो, ओनली इफ आई एम रिक्वायर्ड. बट एक वर्ड ऑफ कॉशियस बता रहा हूं, हमको उनके केवाईसी नॉर्म्स लेने हैं, उनसे एक एफिडेविट लेना है, उनसे एक डिटेल लेनी है कि ये जो पेमेंट है उन्होंने की है और मेरे कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इट इज देयर यूजेज एंड देयर वाई. किराएदार अगर मान लीजिए दे रहे हैं, वो चले गए, आपको 6 साल तक 7 साल तक 148 आता है, ये डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दे देगा इंफॉर्मेशन, और वो पैन नंबर नहीं है उनके पास, तो ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है. अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसको लेना चाहूंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूँ. यस सर, एक जैसे आप बता रहे थे बाबा जी के नाम से मीटर है आप ही के केस में, हाँ जी, उनका डिपार्टमेंट के पास तो आ जाएगी डिटेल्स के ही इज पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ मोर देन 1 लाख, नोटिस भी आएगा. हाँ जी, फिर रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी. फिर उनको रिटर्न फाइल पहले ही कर दे, इसलिए कि क्या करें, मतलब क्या तो बाबा जी को रिटर्न फाइल कर दें या तो, लेकिन फाइल जब यहाँ भरेंगे, सोर्स तो नहीं है उनके पास, नहीं है, आपको नहीं भरनी है रिटर्न, क्योंकि इन्होंने यहाँ ये कहा है एक्सपेंडिचर होना चाहिए. वर्ड एक्सपेंडिचर मीन्स इट इज फॉर यू. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं एक चीज और दिखाता हूं, लॉ क्या कह रहा है. लॉ कहता है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ एक्सपेंडिचर वर्ड नहीं है मैडम. इट्स ओके, पेमेंट है ना. हाँ जी, हाँ, लेकिन फॉर भी ये कहता है, एंड दिस इज बेनिफिशियल टू द एसएससी. सर लेकिन लेटेस्ट नोटिस आएगा तो क्या करेंगे उसमें? अब जो नोटिस आएगा तो या तो बाबा जी मीटर सबके करें, सबमिटर कुछ करना पड़ेगा. नोटिस की तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है जैसे इसमें. जी बिल्कुल बिल्कुल. एफिडेविट और ये केवाईसी नॉर्म्स जो सर ने बताया वो ले सकते हैं, लेके रखिए आप. सर पता लगा मैंने बेच दी, 6 साल बाद बाबा जी कहाँ ढूंढेंगे मुझे? हाँ, यही तो प्रॉब्लम्स तो है ही ना सर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत है इसमें. तो केवाईसी लें, आधार लें, अंडरटेकिंग लें, इंडेमनिटी लें, एफिडेविट लें, पैन नंबर लें, सब लें. एक चीज और है सर, आपने जो फर्स्ट पॉइंट में बताया उसमें सीसी अकाउंट कवर्ड नहीं है क्या? सर करंट अकाउंट लिखा है, करंट अकाउंट की डेफिनेशन आरबीआई एक्ट में देख लो, मेरे हिसाब से नहीं है. ठीक है, चलो बढ़िया हो गया ना ये भी. फिर तो आपको देख लो, अगर आपको कुछ हो आदित्य जी बता देना, मैं करेक्ट कर दूंगा. नहीं सर, मैंने ये बोला है, मैंने कहीं नहीं बोला सीसी इंक्लूड नहीं है. आपने नहीं कहा, लेकिन मतलब ऐसे
क्वेरी आप आरबीआई एक्ट में, आरबीआई में जाइए, देखिए आरबीआई एक्ट में करंट अकाउंट, ओ सीसी अकाउंट की डेफिनेशन क्या है. If it is attached to a current account, सीसी अकाउंट से क्रेडिट और डेबिट दोनों करंट अकाउंट से होते हैं. सीसी अकाउंट सिर्फ आपकी डीपी लिमिट के लिए है, तो अलग आ जाएगा. तो आरबीआई एक्ट में देखते हैं, मेरे हिसाब से नहीं है. ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है सर. सर एक चीज और थी, जैसे ना पीपीएफ में सपोज किसी ने 31 मार्च तक 30,000 या 50,000 वॉटेवर कुछ डिपॉजिट कराया था, अब लास्ट ईयर का ही वो बैलेंस उन्होंने अब करा दिया, सपोज 1 लाख जून तक, तो अब करंट का डिपॉजिट बैंक्स वाले एक्सेप्ट बैलेंस अमाउंट ही कर रहे हैं, 150 माइनस 1 लाख जो भी है, उससे प्रॉब्लम्स फेस होगी ना सभी को? नहीं, देखिए पीएफ के अंदर उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया है, अभी अप्रूव हुआ है 5-10 दिन पहले. अच्छा, तभी क्योंकि और उसमें आपसे वो लिखवा रहे हैं कि आप ये पिछले साल के लिए दे रहे हैं या अगले साल के लिए दे रहे हैं. ओके, मे भी हो सकता है दे रहे हैं, क्योंकि मेरे खुद के पर्सनल केस में उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बोले जी आपने बैलेंस पहले करा दिया. एक फॉर्मेट आया है. ओके ठीक है, थैंक यू. वही ना, अदरवाइज तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी. हाँ जी, एक फॉर्मेट आया है सर. ठीक है, यू मे कंटिन्यू प्लीज. हाँ जी. 1 से 7 आधार और पैन अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं. ये 18-19 जगह चेंज आया है. कहाँ चेंज आया है? आप आधार या पैन, आज की डेट में अगर आधार मोबाइल से लिंक्ड है तो आपको 2 घंटे के अंदर पैन दे रहे हैं. नेक्स्ट, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था 1 मई के बाद अगर कोई नोटिस बगैर डिन नंबर के तो उसको कचरे के डब्बे में डाल दो, इसलिए एनी नोटिस विच इज देयर आफ्टर 1 May and is issued under this section without a UDIN cannot be there. So आपको UDIN नंबर देना है अगर वो 1 मई के बाद है. उससे पहले है तो UDIN नंबर हो सकता है और ना भी हो सकता है. रिफंड के लिए मोर देन 1 बैंक अकाउंट आप दे सकते हैं, लेकिन आपको टिक करना पड़ेगा कि रिफंड किस में चाहिए. ये इसलिए कर दिया, पहले जमाने में होता था, अब सीबीएस में तो इतनी दिक्कत नहीं है. मेरी बॉम्बे में ट्रांसफर हो गई, 6 महीने वहां रहा, वहां से उठा के मेरे को भेज दिया इंदौर. अब मेरा जो बॉम्बे का अकाउंट है उसमें 100 रुपए बैलेंस रख के मैं आ गया, या वो डोरमेंट हो गया. अब वहां कोई क्रेडिट आ जाए तो कहते हैं पहले आओ फिर खोलो फिर. तो इसलिए इन्होंने ये करा कि आप जो है टिक कर दें, अगर आपका रिफंड वहां से वापस आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरे अकाउंट में सिस्टम दे देगा. पहले ये होता था अगर आपने बंद कर दिया या किसी वजह से चला गया तो आपके रिफंड जो है वो दोबारा लेने के लिए आपको एक क्रॉस चेक भेजना पड़ता था, एक और चीजें भेजनी पड़ती थी, एक इंडेमनिटी बॉन्ड भेजना पड़ता था, बहुत सारी चीजें देनी पड़ती थी. वो सब अब अवॉइड हो जाएंगी. यू कैन गिव n नंबर ऑफ अकाउंट फॉर क्लेमिंग द रिफंड. पार्ट ई अदर इंफॉर्मेशन. 2 से लेकर 7, 4 नहीं है, 1 नहीं है. ये पास थ्रू इनकम के लिए है. पास थ्रू इनकम में अगर आपकी जो है क्या कंसेप्ट है, मैं 2 मिनट लूंगा, कि पास थ्रू इनकम जो है ये हमारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं. ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 2 तरीके की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग देयर यूनिट होल्डर. एक जो है जिसपे टैक्स यूनिट होल्डर को नहीं देना है, और एक ऐसी इनकम है जिसपे टैक्स यूनिट होल्डर को देना है. इसकी एक ऑडिट रिपोर्ट होती है, एक सर्टिफिकेट होता है फॉर्मेट में, वो इश्यू करते हैं और आपको ये बताते हैं कि इस अमाउंट पे टैक्स यूनिट फंड ने दिया है, इस अमाउंट पे टैक्स आपको. 2019 में ये आया था कि साहब जिन चीजों पे टैक्स देना यूनिट होल्डर ने है, अगर मान लीजिए वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड लॉस देता है तो वो मेरे को तो कहीं मिलता नहीं है, ना कैरी फॉरवर्ड होता है, तो फॉरगो हो जाता है. एंड एज सच इट इज नॉट ए करेक्ट थिंग. तो उन्होंने ये प्रोविजन यहां दिया, अगर पास थ्रू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड किसी ऐसे लॉस को जो कि अपने यूनिट होल्डर में ट्रांसफर करता है तो उसके लिए इन्होंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और एलटीजी, हाउस प्रॉपर्टी
सब में जो है ये प्रोवाइड कर दिया है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हर तरीके की इनकम वो देता है। और इसके लिए एक शेड्यूल CFL कैरी फॉरवर्ड भी होगा। जैसे 6 साल 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं लॉसेस, ऐसे ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से जो लॉस आएगा ये भी एडजस्टेबल, कैरी फॉरवर्डेबल, एवरीथिंग इज देयर। तो ये जो है ये शेड्यूल CFL के अंदर अमेंडमेंट करी। इसी तरीके से ये जो है इन्होंने जो शेड्यूल CFL है उसके अंदर स्पेसिफिक जो है ये बताया कि हाउस प्रॉपर्टी का आप नहीं ले पाएंगे, इसका ले पाएंगे, इसका नहीं ले पाएंगे। जो ग्रे हैं वो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और एक इन्होंने ये कहा कि अगर आपका करंट ईयर में कोई लॉस आया है जो कि किसी भी नेचर का हो सकता है, तो आपको इसके साथ में ये जो है इन्वेस्टमेंट की देनी है आपको डिटेल। इनकम वालों में नहीं देनी है, लेकिन जिनके अंदर लॉस आया है उनके साथ ये डिटेल देनी आपको जरूरी है, जो कि 115 UA या UB में कवर्ड है। ये भी पास थ्रू से रिलेटेड है। शेड्यूल FA फॉरेन एसेट, इसके अंदर जिप कोड देना जरूरी कर दिया। फॉरेन कंट्री में अगर आप किसी को बगैर जिप कोड बताए, मैं जो है वो वहां गया स्विट्जरलैंड, तो हमने टैक्सी वाले को बोला यहाँ जाना है, बोला जिप बताओ। मैंने कहा वही हमारे पास कोई जिप विप नहीं है। फिर उसने अपनी ऐप में देख दाख के बोला सर ये नोट कर लो, यहाँ जिप नंबर जहाँ जाना है जरूरी है, वरना मेरा ये लेके भी नहीं जाता है। तो हमारे यहाँ तो क्या है, हिसार में भी लाजपत नगर है, दिल्ली में भी है, गाजियाबाद में भी है, तो यहाँ तो कहीं भी है। तो यहाँ पिन कोड और जिप कोड ये जो है जरूरी नहीं है। उन्होंने ये सभी हेड्स में जिप कोड डालवा दिया। उसके 2-3 रीजन है। एक तो ये क्या करेंगे, ये जो है आपकी वैल्यूएशन उसके जिप कोड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से ये वेरीफाई करेंगे कि वो एसेट की वैल्यू आप प्रॉपर दे रहे हैं या नहीं। मान लीजिए लंदन की मेन स्ट्रीट का जिप कोड दे रखा है और मैंने बताया कि 2000 स्क्वायर फीट का मेरा फ्लैट है और वो फ्लैट के आगे मैं लिख रहा हूँ 1.5 लाख रुपए, तो पकड़ लेंगे संजय अग्रवाल जरा आजाद कौन दे रहा है तुझे 1.5 लाख में, डिटेल दे दे इसकी। ITR 6 115 BBD, ये जो है स्पेशल रेट से जो आपके टैक्सेशन है 15% से, उनके लिए डिविडेंड के लिए ये आया। नेक्स्ट, आपके कंपनीज के अंदर ये पहले भी था, सिर्फ और सिर्फ अब क्या कर दिया, ये इन्होंने एक तो स्टार्टअप के लिए अलग कर दिया और सेक्शन 8 या 25 ऑफ 1956 कंपनी उनको अलग कर दिया, उनको नहीं एप्लीकेबल है। बाकी सबके केस में हमें इतनी इंफॉर्मेशन देनी है। लास्ट ईयर इन्होंने एक एग्जम्पशन दी थी कि आपके पास अगर पैन नहीं है तो आप ये पर्टिकुलर थिंग डाल दें, तो वो आज की डेट में वो सर्कुलर एप्लीकेबल है या नहीं है, जब ये स्कीम आएगा तब बताएं। ये कौन सी डेट की डिटेल देनी है, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, और रेजिडेंशियल स्टेटस, नेम, एड्रेस कहीं नहीं मांग रहे। कल अमृतसर में बड़ा झगड़ा हो रहा था मैडम, वो कह रहा है जी एड्रेस यहाँ है वहाँ है। आज भी 2 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, तो मैंने कहा साहब जो पूछ ही नहीं रहे तो काय को। अब बाद में राज बताया उन्होंने कि जो है जी रेजिडेंशियल स्टेटस गलत भर दिया। मैंने कहा भाई रिवाइज करते रिटर्न, आप पूरी बात बताओगे नहीं, दवाई मांगोगे तो क्या होगा, मैं तो कुनाइन दे दूंगा कि भाई एक चलेगी, कोरोना में ट्रम्प ने खाई थी। अगर आप जुकाम है तो जुकाम की दवाई लो ना, कोरोना की क्यों ले रहे हो। तो ये चीज है, तो इसमें ये सब चीजें देनी है। अब आपका ये रॉयल्टी 50% पे टैक्सेबल है। कुछ लोगों ने जिन्होंने 1/4/76 से पहले के एग्रीमेंट है उनको 50% से रॉयल्टी टैक्सेबल है। शेड्यूल SI और OS के अंदर ये पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर 115A के सब सेक्शंस में है। पार्ट 1 जनरल शेड्यूल, यहाँ पे आपको ये बताना है क्या आप जो है बेनिफिशियल प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल लेना चाह रहे हैं या नहीं,
क्योंकि अगर आपने यहाँ ले लिया और आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया तो आपको नहीं अलाउ करेगा। आपने किसी चीज का क्रेडिट लिया, कैरी फॉरवर्ड, ये वो जो आपको रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ बेनिफिशियल प्रोविजन में, तो वो आपको नहीं मिलेंगे, प्रोग्राम आपको ब्लॉक करेगा। ये सर एक नई चीज डाली है, डिन नंबर एज पर एमसीए, और मेरे को जो बताया गया है ये डिन नंबर जब आप डालेंगे तो वो सीधा एमसीए की साइट पे उसको वैलिड करने जाएगा। अगर आपका वहां वैलिड नहीं है तो ये रिटर्न फाइल नहीं करने देगा। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ये कुछ नहीं है, छोटा सा चेंज है, को ओनर्स के लिए अलग से दिखा दिया है, बाकी पहले भी था, पहले को ओनर्स नहीं थे, अब को ओनर्स के लिए अलग कर। ये शेड्यूल खत्म कर दिया है इंडियस की वजह से। जो इंडियस कंपनी है वो अकाउंट्स मेंटेन ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। 3, 5, 6 जो मोटर कार या मोटर व्हीकल, मोटर लॉरीज जो कि आपने 23 अगस्त और 31 मार्च के बीच में खरीदी हैं, उनके ऊपर ऑटो सेक्टर को बेनिफिट देने के लिए नोटिफिकेशन आया था। बी केयरफुल, नोटिफिकेशन नंबर 69 ऑफ 2019 डेटेड 20th सितंबर 2019। इसमें इन्होंने 15 को 30 और 30 को 45 करा था। व्हीकल्स, गाड़ियां नहीं बोल रहा हूं, मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में लॉरीज आती हैं जो कि एनहांस डेफिनेशन पे होती है, टिप्पर्स ये भी होते हैं, टैक्सीज इसके ऊपर एनहांस रेट्स है। तो जिनके ऊपर 15 था उनको 30 कर दिया। ये कार पे होता है, कार पे 15 मिलता था, अब 30 मिलेगा। अगर वो कार टैक्सी में यूज हो रही है तो उस पे 45 मिलेगा, पहले 30। तो 45 नाम का यहाँ पे शेड्यूल नहीं था, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। DTAA के लिए पूरा यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है कि आपका DTAA का कौन सा सेक्शन है, TRC लिया नहीं या आर्टिकल कौन सा है, कंट्री नेम कौन सा है, कोड क्या है, बताओ। ये सारा डिटेल अलग कर दी, उसी रेट पे आपके टैक्सेबल। सेकेंडरी एडजस्टमेंट ये भी नया आया था। जो लोगों ने टीपी की कोई एडजस्टमेंट पिछले साल में जो 2019 या उससे पहले की एडजस्टमेंट मान ली, उनको करंट ईयर में टैक्स दे रहे हैं, उसके लिए इन्होंने एक नया शेड्यूल बनाया है, TPSA, ट्रांसफर प्राइसिंग सेकेंडरी एडजस्टमेंट शेड्यूल। इसी तरीके से आपको 43B में लास्ट ईयर NBFC जो कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हैं और नॉन डिपॉजिट है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं देते हैं तो वो जो है डिसलॉयबल है 43B में, इसलिए उनको यहाँ कवर कर दिया। अब ये टैक्स ऑडिट वाला है, ये बाद में डील करेंगे, ये बड़ा लंबा है। 1 and 4 ये एम्प्लॉयमेंट बतानी है आपको कैसी है, इससे ये कैटेगराइजेशन कर लेंगे और उसके बाद उसको देखेंगे। सरकार वालों को वहां से कहीं से वेरीफाई करेंगे जो वो डिपार्टमेंट में फाइल कर रहा है, पब्लिक सेक्टर वालों को वहां से देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर में जो है आदमी 25,000 कमा रहा है और उसके एसेट्स कितनी नाम की हैं, ये इसके लिए इन्होंने कैप्चर कर दिया। ITR 7 में 2-3 छोटे छोटे चेंजेस हैं। पहला चेंज ये है, रजिस्ट्रेशन इज एज पर न्यू प्रोविजन अगर है तो आप देते, ये अगले साल से आएगा, लेकिन जो है कहीं जो है इन्होंने 12AA को भी यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया है इन एडवांस। तो ये जो है ये चेंजेस है। कॉर्पस डोनेशन क्योंकि अलाउबल नहीं होती है एज एक्सपेंडिचर, तो उसको उन्होंने यहाँ पे बताया अदर देन यहाँ दें और डिसअलाउंस करें जो कॉर्पस डोनेशन है, अगर आपने उसको वहां इंक्लूड कर रखा है। ये जो है कैपिटल गेन वाला 11(1)A एग्जम्पशन जो है 112A की नहीं अब एप्लीकेबल है, इसलिए इस कॉलम को हटा दिया। 5 और 6 के अंदर शेड्यूल BP के अंदर ये इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड सेपरेट शेड्यूल कर दिया है और उनके लॉसेस को भी सेपरेट कर दिया है। ये ऑफशोर फंड यूनिट्स में अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो उससे अगर आपको कोई इनकम आ रही है उसको सेपरेट रिपोर्ट करना है शेड्यूल OS के अंदर पार्ट 2C में आइटम नंबर 19 पे। हाउस प्रॉपर्टी अगर मोर देन 1 है, SOP है, तो वो आपको यहाँ बतानी है। तो ये जो है पहले ये 5 और 6 में गलती से पिछली बार रह गया था, उसको इस बार इन्होंने डाल दिया। कैपिटल गेन में 54EE की कोई भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं करी, इसलिए इन्होंने
यहाँ से इसको रिमूव कर दिया ताकि कोई गलती से ना क्लेम करे। 2, 3, 5, 6 ये सर जो हमारा कैपिटल गेन शेड्यूल था उसको थोड़ा सा इन्होंने चेंज करा है, और वो क्या चेंज है ये मैं आपको बता दिया एक टेबल में कि ये पॉइंट सेम थे जो पिछले साल थे और ये डिलीटेड हो गए हैं। बाकी कोई मेजर चेंज इसमें पिछले साल से नहीं है। 3 और 6 ये जो एओपी और बीओआई हैं इसमें किसी तरीके की ये वाली पेमेंटें जो रेड में दिखाई हैं अलाउएबल नहीं होती हैं, इसलिए इनको यहाँ पे दिखाया है ताकि आप डिसअलाउ कर सकें। ITR 2 के अंदर ये अगर आपने कोई डिडक्शन आपने 80D में ये ली है तो आपको इसकी ड्रॉप डाउन डिटेल ये सारी देनी है। हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंट, ये वगैरह सारी आपको अलग अलग देनी है क्योंकि हर एक की अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट है। ये कुल मिला के जितना जो समय था मैंने उसके, अगर आपकी इससे भी रिलेटेड कोई क्वेरी है यू आर मोस्ट वेलकम। सर एक क्वेरी आई हुई है। हाँ जी बताएं। महल बंसल है, if a person is not ordinarily resident and make expenditure exceeding the limit in foreign traveling, are they covered under 7th provision to section 139? If they are not filing any return, yes, as on today. एक गौरव जैन की सर, one general query. If SSC died and in the year of death, we have filed the return through legal hire. But in the next year also TDS under section 194 is deducted in the hands of deceased. कैसे हो सकता है? Then how can we get the refund of TDS deducted in the hands of deceased in second year? उन्होंने पैन चेंज नहीं कराया होगा ना, एक्चुअली वहाँ यही होगा। नहीं इंटीमेट नहीं किया ना जी उनको। हाँ वही, वहाँ इंटीमेट नहीं किया तो वही इंटीमेट करके पैन नंबर ही चेंज करा दे मेरे हिसाब से। नहीं होगा, पैन नंबर भी चेंज नहीं होगा वहाँ। रिफंड की रिटर्न फाइल कर दो उनकी डिजीज की। नेक्स्ट ईयर की भी एज ए लीगल हायर कर सकते हैं क्या? हाँ कर दो, 2 साल तक कर दो। ईयर के अकाउंट में रिफंड आ जाएगा, बट उसके लिए वो पूरा प्रोसीजर है, वहाँ पे उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा पहले एज ए लीगल ईयर, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस। वो तो पिछले साल कर ही लिया ना उन्होंने, किया ही थे ना पवन जी। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली। वो जितने का रिफंड है ना उससे ज्यादा टाइम लग जाता है उसमें। भारत जी कहाँ हैं? संजय जी, योर सेशन वाज वंडरफुल। अब मैंने पूरा उसमें कर दिया है, मेरी प्रेजेंटेशन चली गई है। चैट बॉक्स में बड़े सारे नंबर आ गए, क्या है ये सभी वंडरफुल सेशन था और हमने को आपका डबल फायदा, दो एनी टाइम। नहीं वो तो बाई चांस। वैसे एक बात आपको बताऊं, मेरा जो जीएसटी का वॉइस ऑफ सीए में सेशन चल रहा था वो भी आज 5:30 बजे तक चला। तो मैं आज उनको बोल रहा था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी यूट्यूब पे, तो मैंने कहा मेरे कंप्यूटर को चला लो, मुझे दूसरा दे दो। तो वो फिर पीपीटी लानी पड़ जाती है भागा दौड़। ये तो मेरे कंप्यूटर में कुछ भी पूछ लो। हाँ नहीं बहुत ही अच्छा। और दोनों टॉपिक्स इतनी अच्छी तरह, दोनों पीपीटी शेयर कर दीजिएगा सर ना। हाँ जी आप मेल भेज दीजिए जिस पे आपको चाहिए। हाँ जी ओके। पवन जी प्लीज। थैंक यू सर, यू एक्सप्लेन द टॉपिक इन वेरी प्रैक्टिकल एंड डिटेल्ड मैनर। And now I request Vice Chairman C. Bharat Jain ji for अशोक जी आप नजर आए। नमस्कार सर। गोयल साहब नमस्कार। अशोक जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार संजय जी। सर प्रणाम। आपका आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए सर हमेशा। नहीं ये मैडम मेरी हर सेमिनार में आते हैं अशोक जी। और बाद में जब पर्सनली आता था तो चाय पिलाने भी ले जाते हैं। चलिए अच्छा है ना, फिर बुलाएंगे संजय जी। ये लॉकडाउन वगैरह सब खत्म हो फिर आपको बुलाएंगे जरूर हिसार में ना, एनी टाइम पर्सनली भी। hand over to Bharat ji for formal vote of thanks. Good evening sir. On behalf of Hisar branch, I would like to thank C. Sanjay Agrawal ji, past CCM, for sharing his view on EA assessment and changes in ITR. Sir, thank you very much for sparing your time for us. I would like to thank all the members who attended this program and made this event very successful. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you so much, Sanjay ji. Once again. Stay safe. Corona से बच के रहें. Stay inside and enjoy your life. Thank you very much. Thank you, Sanjay ji. Thank you once again.
थैंक यू जी। बंद ही नहीं हो रहा। मेरा तो बंद नहीं हो रहा।